my dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Ikra and I am from grade 3B. Today, the topic of my speech is books are better than television. I want to share with you why I believe that books are better than television. Firstly, books let our imagination run wild. When we read, we get to create our own picture and scenes in our mind. On the other hand, TV limits our imagination and shows us everything in visuals. Secondly, books offer us personal time. We can lose. Secondly, books offer us personal time. We can lose ourselves in the story and get away from the noise of the world. In conclusion, while television certainly has its merits and provide entertainment, but books, the magic of books and allow them to enrich our life. Thank you. That was really amazing. Good job, Ikra. Once a reader said, "Don't judge a book by its movie." Well, I believe it's right because movie limits our imagination, but a reader has limitless imagination. Yes, true. Now I would like to call Anisa Abdul Hamid from 4A to share her view. Please clap for her. Ladies and gentlemen, esteemed judges and fellow debaters, a student from grade 4A, Anisa is here to make the case that books are indeed better than television. And you know, it's not just that they give us a legitimate excuse to wear cute glasses, but it also gives a chance to imagine. When you open a book, you're like a director casting characters in your mental production. You can imagine dragons with mustache and no one tell you it's wrong. On TV you're stuck with what they show you, even if the detective mustache isn't nearly as impressive. And let's not forget those wonderful commercial breaks. Books don't interrupt your thrilling adventure with ads for cleaning products or insurance you never knew you needed. You won't find the latest vacuum cleaner manual listed as a bestseller, but you will find it on TV. In conclusion, books let your imagination run wild. Don't tolerate multitasking, keep you engaged without commercial breaks, and also makes you a star of intellectual conversation. So my friend, let's celebrate books and leave television to lifeless and unimaginative people. Thank you. कागज की ये महक नशा रूठने का है, कागज की ये महक नशा रूठने का है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की. Ladies and gentlemen, esteemed judges and fellow debaters, a student from grade 4A, Fatima is here to make the case that books are indeed better than television. And you know, it's not just that they give us the legitimate excuse to wear cute glasses, but it also gives you a chance. When you open a book, you're like a director casting characters in your mental production. You can imagine dragons with mustaches and no one tell you it's wrong. On TV you're stuck with what they show you, even if the detective mustache isn't nearly as impressive commercial breaks. Those wonderful commercial breaks Books don't interrupt your thrilling adventure with ads for cleaning product or insurance you never knew you needed. You won't find latest vacuum cleaner manual listed as a bestseller, but you will find it on TV. In conclusion, books let your imagination run wild. Don't tolerate multitasking. Keep you engaged without commercial breaks. And you know, it's not just that they. हैरत है तालीमो तरक्की में है पीछे, हैरत है तालीमो तरक्की में है पीछे, जिसको का आगाज ही इकरा से हुआ था. Thank you. Now I would like to call Bisma Noor from grade 4B to share her ideas. Please clap for her.
Ladies and gentlemen, boys and girls, Assalamu alaikum. Bisma Noor from grade 4B is standing in front of you to talk about a wonderful and interesting topic, that books are better than television. It is important to remember that books and television are both fantastic, but there are some reasons why books can be more amazing, especially when you are a kid like me who loves to read books. Books allow your imagination to soar. When you read a book, you get to be the director. When you read a book, you get to create a picture in your mind. You can imagine what the character look like, what the places are like, and even how the adventures feel. On TV is everything shown to you, but with books, you get to be the director of your own movie in your head. Another good thing about books is that they help you to focus and improve your reading skills. While TV makes you lazy and incompetent, I am not saying TV is bad, which actually I am, but it is also a lot of fun and we can learn from it too. But books can be with you anytime and anywhere. So remember, books can be a fantastic. Most respectful audience, good morning and assalamu alaikum. I, Sufyan Mohib from grade 5B, is glad to be here to share some ideas on the topic of books are better than television. Most of you must have heard the saying that books are your best friend. Who is a best friend? The one with whom you share a deep level of understanding and communication. The way I see it, no other thing can understand you better than the books of your choice. On the contrary, TV does give us an appealing visual and auditory experience provided by the books. Books also being a source of knowledge, help to expand our imaginations and creativity. TV uses simple language which limit, whereas reading book enhance vocabulary. Each page of a book introduces you to a new world of experience, improving language. Books require focus and concentration. This helps to improve attention span. Reading book offer a unique that TV cannot match. Therefore, are always a great friends of mine. Thank you so much. हम आगाज करेंगे उर्दू तकारीर के मुकाबले का, जिसका उन्वान है उस्ताद की अजमत। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर पिघल जाते देते हैं। उस्ताद बादशाह तो नहीं होते, लेकिन शागिर्द को बादशाह बना देते हैं। मंजिल से आगे भरकर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे भरकर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि इसने हमें उस्ताद जैसा अनमोल तोहफा दिया। उस्ताद एक ना थकने वाली मशीन है। शुक्रिया। Well, I guess that's true. उस्ताद एक ना थकने वाली मशीन है। They're always multitaskers. थैंक यू ज़रा फातिमा। अब मैं दावत देता हूँ 3B के शहजादा ज़हूर को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। उस्ताद वो समुंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है। जनाबे सदर उस्ताज़ा कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब की शायरी का मौका मिला है, इसका नाम है उस्ताद की अज़मत। कहते हैं कि उस्ताद रूहानी बाप होता है और ये पेशा अपनाना दरअसल सुन्नत नबी की पैरवी के मुतरादिफ हैं और सुनते नबी की पैरवी के कहाँ गया सुनते नबी की पैरवी के मुतरादिफ हैं। क्यों ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और मुझे मौलिम बनाकर भेजा गया। उस्ताद बहुत अनमोल होते हैं। इनकी नसीहत अक्सर हमें गैर अहम लगती हैं, लेकिन वक़्त के साथ साथ इनकी नसीहतों का अंदाज़ा भी इंसान को होता है। उस्ताद की अज़मत को तराजू में ना तोलो, उस्ताद की अज़मत को तराजू में ना तोलो। उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है।
जनाब सदर, रिश्तों में से सबसे मुकद्दस रिश्ता उस्ताद और शागिर्द ही का है, मगर अफसोस तलबा का हाल ऐसा हो गया है कि वो उस्ताद की इज्जत नहीं करते। इसका नतीजा ये निकला है कि कामयाबी इनके मुकद्दर नहीं बनती। जनाब सदर, वालिदैन सिर्फ बच्चों को अर्श फर्श पर लाते हैं, लेकिन उस्ताद बच्चों को अर्श फर्श पर पहुंचाते हैं। यही उस्ताद की शान है। ये जो हमारी दस्तगाहों में उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच शहजादा, दैट वाज गुड। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक इनकी हक में हमारे नेमत। अब मैं दावत देती हूँ 4A की हरीम सज्जाद को कि वो स्टेज पर आकर उन्वान से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। जनाब सदर, मोहतरम उस्तादा और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का मौजू है उस्ताद का मकाम। सदर अली वकार, उस्ताद बादशाह तो नहीं होता मगर अपने शागिर्द को बादशाह बना देता है। आज जब मुझे ये मौजू मिला तो मैं सोच में पड़ गई कि शायद मैं इस मौजू के साथ इंसाफ ना कर पाऊंगी, क्योंकि बकौल शायद अदब भी करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। तलबा और उस्ताद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं। इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस्ताद वो है जो बंजर ज़मीन को खिलियाल बना दे, उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश करके हीरा बना दे, उस्ताद वो है जो किसान भी है, मामार वतन भी है, और अर्ज के उस्ताद पर वाजिब एहतराम भी है। जनाब सदर, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लम कहा, यानी उस्ताद, और इस रिश्ते को एक आला मिसाल बना दिया। मेरा तो ये दावा है कि जिस तरह फूलों को चमन की ज़रूरत होती है, चाँद को धमक की ज़रूरत होती है और सूरज को चमक की ज़रूरत होती है, इस तरह हमारे बाशी को भी उस्ताद की ज़रूरत होती है। जनाब सदर, खजा के मौसम में भी बहार देते हैं, उस्ताद हमारी अच्छी तरबियत करके हमें निखार देते हैं। जनाब सदर, अब आखिर में मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम शागिर्दों की तरफ से उस्ताद को सलाह पेश करना चाहूँगी। ऐ मेरे उस्ताद, तू है ज़िशान वाला, ऐ मेरे उस्ताद, तू है ज़िशान वाला, तेरी अज़मत तेरी रिफ़त को सलाम। इल्म और हिकमत का इल्म बिदार है तू, इल्म और हिकमत का इल्म बिदार है तू, काफ़िले हक़ का सलार है तू। शुक्रिया। Thank you so much, बेटे, that was amazing. अब मैं दावत देना चाहूँगा कि 4B की इस्मा अब्दुल सत्तार को वो अपनी राय का इजहार करें। मुअज़्ज़िज़ उस्तादा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ खुदा की बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और तमाम जहानों को पालने वाला। सदर अली वकार, आज मुझे जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है वो मौजू है उस्ताद की अज़मत। हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सदर अली वकार, इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता, वो रिश्तों नातों के साथ जुड़ा रहता है। इनमें से कुछ रिश्ते इखलाकी, रूहानी और
तौर पर बंधे होते हैं। इनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को मुआशरे में रूहानी बाप का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है। सदर आली वकार, कहूँ कि दुनिया में वालिदैन के बाद अगर किसी पर बच्चे की जिम्मेदारी कायद होती है तो वो मुअल्लिम यानी उस्ताद है। सदर आली वकार, उस्ताद तो वो हस्ती है जो हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की राह दिखाता है। उस्ताद तो वो है जो हमें दुनिया में जीना मरना सहना सिखाता है। उस्ताद तो वो हस्ती है जो लोहे को दबाकर कुंदन बनाता है, पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है। सदर आली वकार, चनाचा आज से उस्ताद वाजिबुल एहतराम शख्सियत है। बरसते हैं ये सावन की तरह ज़मीनों पर, बरसते हैं ये सावन की तरह ज़मीनों पर, इन्हीं की खोज से नामवर निजात होते हैं। शुक्रिया। Thank you so much, अब्दुल सत्तार। देखा न कोहकन कोई फरियाद के बगैर, देखा न कोहकन कोई फरियाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। अब मैं दावत देना चाहूँगी 5A की ईमान सरदार को कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। जितनी भी मुझे इस ज़माने से दाद मिली है, जितनी भी मुझे इस ज़माने से दाद मिली है, मेरा ईमान है कि सब बासे उस्ताद मिली है। मेरे रहबर मेरे मोहसिन, मुझे इल्म देने का है करम तेरा। मेरे रहबर मेरे मोहसिन, मुझे इल्म देने का है करम तेरा। मेरे उस्ताद मेरे मुर्शिद, मेरे दिल पर है नामो रकम तेरा। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ ना जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। जनाब सदर, मोहतरम सादा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सदर आली वकार, मेरी आज की तकरीर का अनवान है अज़मत इसाजा। उस्ताद जी लफ्ज़ ऐसा गुलदस्ता है जिससे पूरा चमन मोतर हो, ऐसा सितारा है जिससे सारा आसमान मुनव्वर हो। समंदरों की मौजों का ये सिलसिला है जिसकी तलातुम से ज़िंदगी का गुमा हो, और ये कैसी सबा है जिसकी ठंडक दिल में उतर जाए। मौलिम वो लफ्ज़ है जिसके दामन में अनगिनत मिसालें रोशन है, जिसका आंचल मुस्तकबिल के जुगनों से भरा हुआ है, जिसका आंचल मुस्तकबिल के जुगनों से भरा हुआ है। अगर हम इस लफ्ज़ के पर्द खोलें तो शायद पता करने में उम्र बीत जाए। उस्ताद की मिसाल इस सीढ़ी की मानिदा है जो खुद तो अपनी जगह पर रहती है मगर दूसरों को बुलंद से बुलंद मकाम अता करती है। किसी ने क्या खूब कहा कि इंसान को शाइस्ता खुददार बनाया, इंसान को शाइस्ता खुददार बनाया। तहजीब व तमद्दन तेरे शर्मिंदा एहसान। सदर आली वकार, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को अपना नायब मुकर्रर किया, फिर इस नायब को मौलिम के दर्जे पर फाइज किया। इसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलिम बनाकर भेजा। इल्म किसी किस्म का भी हो, वो मौलिम की महरूने मिन्नत कहलाता है। जिस तरह इल्म के बगैर भी अमल के बगैर भी इल्म, रोशनी के बगैर सितारे, खुशबू के बगैर फूल, सूरज के बगैर सुबह भी मायनी होती है, इसी तरह किसी रहनुमा या मौलिम के बगैर इंसान पे नामो निशान होता है। ये उस्ताद ही तो होते हैं जो हमारी कौम कहलाते हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगी, उस्ताद तेरी अज़मत को सलाम, उस्ताद तेरी अज़मत को सलाम। तू ना होता तो ये दुनिया होती बेनाम, तू ना होता तो ये दुनिया होती ना। शुक्रिया। That was Iman Sardar. Now we would like to call Maryam Abdul Rahman. Please put your hands together for her. चाँद की धमाक फूलों की महक, चाँद की धमाक फूलों की महक बाकी रहेगी, रहेगा नाम खुदा बाकी, उसका तज़किरा बाकी। मौजूद उस्ताद ज़कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजूद पे लब कुशाई का मौका दिया गया है वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि क्या हम आज़ाद हैं। जनाब सदर, इस सवाल का जवाब निकलने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक पे बात
करने वाले साहब अजीज मेमन की लाश आई, मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा एक वाक़या तो हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर मिट्टी, हर जगह हो जाता है। लेकिन फिर मेरे सामने सड़क पर ज्यादती का निशाना बनने वाली माँ आई, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि हम आज़ाद नहीं हो सकते। कि कहती है, इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आज़ाद मुल्क में बैठ के ना शुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना, ना शुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। मेरे दिल को तसल्ली दी ही थी कि एटीएम मशीन के कैमरे में से मुंह चढ़ाने वाली वीडियो मेरे ज़मीन को झंझोड़ने लगी। तू लिख, तू हक लिख, ईमान पे जान पाऊं, तुझसे एक बात कहूं, जहां ज़हनी तवाज़ुन ना ठीक होने वाले शख्स को इतनी बेदर्दी से मारा जाए, वहां कोई आज़ाद नहीं। आज मैं मारा गया हूं, कल कोई और मारा जाएगा। सोचने का ज़माना ही नहीं, बस बेदर्दी से काम चलाया जाएगा। जनाब आला, अभी मैंने इसकी जिसारत की थी कि फलस्तीन, कश्मीर और बर्मा के लोगों ने चीख के कहा, अभी तो तेरी इस नेमत से आशना ही नहीं, अभी तो तेरी इस मौजू पर लिखने की उम्र ही नहीं। तू आज़ाद है, तू आज लिखने को आज़ाद है, तू आज पढ़ने को आज़ाद है, तू आज स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करने को आज़ाद है। हमारे मर्द अपनी इबादत गाहों में इबादत करने को आज़ाद हैं। जन्म मान लिया कि 20% लोग माशरे में खराबियों की वजह से नाइंसाफी का शिकार हुए होंगे, लेकिन तू उनके लिए हक की आवाज़ उठाने को आज़ाद है। ये सोचते ही मेरा कलम हाथ से नीचे गिरा और मैंने इस मौजू को लिखने का इनकार किया। बहरहाल मैं इस नतीजे में पहुंची कि आप लोगों का फैसला बता के आप लोगों के हाल में छोड़ा कि क्या हम आज़ाद हैं, खुदा करे वो बहार आए, जो सारे कर्ज उतार आए। मेरे वतन के नसीब में भी सकून राहत करार आए। शुक्रिया। That speech was full of energy, was it? एक और दफा क्लैपिंग होनी चाहिए। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ ना जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया, मैं कुछ ना जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। पहुंचा दिया है फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया है फलक तक उस्ताद ने यहाँ से। वाकिफ न था ज़रा भी इतने बड़े जहाँ से, वाकिफ न था ज़रा भी इतने बड़े जहाँ से। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है, इसका उन्वान है उस्ताद की अज़मत। उस्ताद, ये लफ्ज़ ऐसा गुलदस्ता है जिससे पूरा चमन मुअत्तर हो, ऐसा सितारा है जिससे पूरा आसमान मुनव्वर हो, और एक ऐसी सबा है जिसके ठंडक दिल में उतर जाए। मेरे अजीज़ साथियों, ये उस्ताद है क्या? उस्ताद कहते किसको हैं? उस्ताद तो वो हस्ती है जो गुमा को यकीन में डालता है, जो पत्थरों से हीरे तराशता है, जो चश्मा बिसारत को निगाह बसीरत अदा करता है, जो जुल्मत की शबों में सूरज निकालता है। वो हस्ती जिसके लहजे में मिठास, निगाहों में शफ़क़त और रवैये में प्यार होता है, वो उस्ताद कहलाता है। हमारी दर्सगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दर्सगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। उस्ताद तो वो हस्ती है जो हाथों में जुगनू लिए शम्सो कमर की आंखों में ये आंखें डालकर कहता है, ये महरे दामाद से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, ये महरे दामाद से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। मैं अपने सेहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ, मैं अपने सेहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मेरे जी साथियों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद है। वालिदैन वो हस्ती हैं जो बच्चों को अर्श से फर्श पर लाते हैं, और उस्ताद वो हस्ती है जो इंसान को ज़मीन से आसमान तक पहुँचाता है। इसलिए सिकंदर आज़म ने कहा था कि मेरा बाप वो है जो मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया, और मेरा उस्ताद वो है जिसने मुझे ज़मीन से दोबारा आसमान तक पहुँचा दिया। उस्ताद की अज़मत को तराजू मेरा तोलो, उस्ताद की अज़मत को तराजू मेरा तोलो। उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। मेरे अजीज साथियों, अपने उस्ताद की इज्जत करो। ये वो हस्ती है जो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की राह दिखाती है। उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर अपने तुलबा को बादशाह बना सकता है। उस्ताद एक चिराग की तरह है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जला देता है।
अपने उस्ताद की इज्जत करो, इसकी बदौलत तुम ये इबारत पढ़ने के काबिल हो। देखा न कोकन कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोकन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। मेरे अजीज साथियों, ये भी हकीकत है कि उस्ताद ही है जिससे अपने शागिर्दों के अरूज की फिक्र होती है, वरना आजकल के दौर में कौन किसी की फिक्र करता है। तुमसे मिल्लत व अक़वाम की खुशहाली है, तुमसे मिल्लत व अक़वाम की खुशहाली है। तुमने कश्ती मेरी तोहफा से निकाली है, तुमने कश्ती मेरी तोहफा से निकाली है। फर्श की खाक को परवाज़ सिखाई तुमने, फर्श की खाक को परवाज़ सिखाई तुमने। तुमने तकदीर हज़ारों की बदल डाली है, तुमने तकदीर हज़ारों की बदल डाली है। आयाम शिकस्ता तो गुजर जाएंगे लेकिन, आयाम शिकस्ता तो गुजर जाएंगे लेकिन, उस्ताद के होठों की हंसी याद रहेगी, उस्ताद के होठों की हंसी याद रहेगी। आखिर में इस शेर के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। तुम्हारी बातों की भीनी खुशबू हमारी सोचों में बस गई है, तुम्हारी बातों की भीनी खुशबू हमारी सोचों में बस गई है। तुम्हारे नक्शे कदम से हमने हजार उजले ख्याल पाए, तुम्हारे नक्शे कदम से हमने हजार उजले ख्याल पाए। तुम्हारा दस्ते शफीक थामा, तुम्हारी उंगली पकड़ के खुद को संभाल पाए, तुम्हारा दस्ते शफीक थामा, तुम्हारी उंगली पकड़ के खुद को संभाल पाए। तुम्हारी आंखों की रोशनी से हमारे दिल भी हुए मुनव्वर, तुम्हारी आंखों की रोशनी से हमारे दिल भी हुए मुनव्वर। तुम्हारे लफ्ज़ों के सच्चे मोती हमारे दामन में भर गए हैं, तुम्हारे लफ्ज़ों के सच्चे मोती हमारे दामन में भर गए हैं। तुम्हारे दम से ये खोटे सिक्के चमक गए हैं, दमक गए हैं। तुम्हारे दम से ये बिगड़े नक्शे संवर गए हैं, तुम्हारे दम से। हमारी राह का है नूर अब तक, तुम्हें खुदा ने कमाल बख्शा, हमारी राह का है नूर अब तक, तुम्हें खुदा ने कमाल बख्शा। तुम्हारी नेकी अजीम तर है, तुम्हारा रुतबा खुदा ही जाने, तुम्हारी नेकी अजीम तर है, तुम्हारा रुतबा खुदा ही जाने। तुम ही से सीखा सवाल करना, तुम्हारे बच्चे ये पूछते हैं कहाँ से लाएं हमें बताओ वो फूल लम्हे गुलाब यादें, कहाँ से लाएं हमें बताओ वो फूल लम्हे गुलाब यादें, कहाँ से लाएं हमें बताओ वो फूल लम्हे गुलाब यादें। शुक्रिया। Wonderful audience, my name is Kenna and I am from class 3A. Today I am here to discuss the topic that books are better than television. Reading has an extraordinary impact on our mental health. On the other hand, TV has exact opposite effect. Reading can enhance critical thinking and generate positive vibes. No doubt TV also provides us with a lot of knowledge, but this knowledge is temporary. Once the show is over, knowledge and information fades away gradually, but books are permanent source of knowledge. You can get benefit from it again and again. Hence, books are better than television. Thank you. Gee, how was it? Was it good? So, one advantage of reading a book is that if you fall asleep while reading, you don't miss the ending. Now, I would like to call second speaker, Ikra Javed from class 3B. Please give her a big hand. Our respected founder, Khalid Sheikh Sahab, and our respected co-founder, Amjad Bhattu Sahab. Please come on stage to distribute awards among the position holders. Now I would like to call Madiha Imran. Ma'am Madiha Imran to come on stage. She is very respectable for us and thank you so much ma'am for your precious time. जिन जिन की अम्मी आई नहीं है तो सामने आए, यहाँ पे आए. जिनके पेरेंट्स आए हैं वो यहाँ सामने आए जरा. बाकी उन्हें परेशान नहीं होना, उनके भी आ जाएंगे. जिन जिन के पेरेंट्स आए हैं, ठीक है. आप अपनी अपनी अम्मी के पास जाकर खड़े हों. जिन जिन की अम्मी, ये जी वेल डन. अब मेरी बात गौर से सुननी है आपने, बच्चों ने भी और अम्मियों ने भी, मेरी बहनों ने भी. जितने आप खुश हैं ना, उतना ही मैं खुश हूँ. आपको खुशी हुई है ना? ये जो सिर्फ अंग्रेजी नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस, इनका एतमाद जो है, इनके अंदर जो एजुकेशन होती है, माशाल्लाह ये कल को इंशाल्लाह इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, हम बनाएंगे. मैंने आपको स्पेशल बुलाया. कुछ लोग नहीं आए हैं, आपने परेशानी, वो भी आएंगे. नेक्स्ट टाइम
आपके सब के पेरेंट्स जिनके नहीं है, इंशाल्लाह आज यहाँ पे वो नेक्स्ट टाइम आएंगे, हम इन्हें बुलाया करेंगे, आप आया करें, इनको अप्रिशिएट करें। ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इन्होंने पाकिस्तान को संभालना है। इनको कभी भी आपने माँ बाप की इज्जत करनी है, जिसका उस्ताद की उस्ताद माँ बाप के बराबर है, स्कूल में आते हैं, लेकिन माँ जो घर से आपको संवार के भेजती है, पाल के भेजती है, खिला के भेजती है, उसका सबसे पहला हक है कि उसकी इज्जत एहतराम करने में सबसे पहले, फिर अपने मोहल्लेदारों की, दोस्तों की, और यहाँ आके आपने अदब आदाब सीखे हैं, वो जाके सिखाने हैं अपने मोहल्ले में जो लोग मुश्किल में हैं। ठीक है, तो आज इनके लिए बहुत सारी तालियां तमाम मेरी बहनों के लिए, माओ के लिए। आ जाए बच्चों, आप दोस्तों के साथ आ जाए। वेल डन। आज आपके लिए बड़ा ही खुशी का मकाम है माशाल्लाह कि आप अपने बच्चों को माशाल्लाह इतना ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनकी हमारी जो खालिद शेख साहब, उनकी मिसेज जो है, उनकी पोती हैं, तो वो उस वक्त उन्होंने इंग्लिश, बाज़ दफ़ा मुझे लोग कहते हैं इनको इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हैं इतना ज़्यादा, ये इंग्लिश में क्यों बोलते हैं, ये उर्दू तो नहीं आती है, पंजाबी आती है। अब इन्होंने कम्पीट करना है दुनिया के साथ, मुकाबला करना है। उस मुकाबले के लिए हमें इन बच्चों को तैयार करना है। ये हमारे हथियार हैं, ये हमारा सरमाया है, जिन्होंने जाके ऊपर लड़ना है। जब आप उनकी बात ही नहीं समझ सकेंगे तो आप कैसे उनके साथ फाइट करेंगे। और दूसरी चीज़ जो हम बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं, हम कुरान पढ़ाने लगे हैं, अरबी ज़ुबान सिखाने लगे। आप सब बच्चे इंशाल्लाह ना सिर्फ इंग्लिश सीखेंगे, प्रॉपर अरबी बोलना, लिखना और पढ़ना सीखेंगे, ताकि उनको कुरान की समझ आए कि कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये सबसे बड़ी किताब है। अभी जो पहला आपका चल रहा था कि किताब और टेलीविज़न, अगर अल्लाह ताला के लिए क्या चीज़, कौन सी चीज़ है जो मुमकिन नहीं है। वो टेलीविज़न उतार देता ऊपर से और सारे टेलीविज़न देख रहे होते, उसने सब नबियों पे किताबें उतारी, और आखिरी किताब कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ पे आके कंप्लीट कर दे। इसका मतलब है कुरान किताब की सूरत में आपके सामने है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमें अरबी का पढ़नी आती है ना, हमें अगर पढ़नी आती है तो हमें समझ नहीं आती है, और अगर बोलनी नहीं आती तो हम एक दूसरे बात अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। एक बंदा वो सऊदी अरेबिया जाता है तो वहाँ लिखा होता है बैतुल खुला, तो वहाँ जाके अदब से खड़ा हो जाता है, कोई सब दादा भाई ये टॉयलेट लिखा हुआ है, ये अंदर लैट्रिन है। तो हमें इस किस्म की शर्मिंदगी होती है। हमें कोई पूछता है कि आप मुसलमान हैं, हम कहते हैं हाँ जी मुसलमान हैं। वो कहता है अच्छा यार ये मुझे पढ़ के दिखाना, ये अरबिक में लिखा हुआ है, ज़रा सुनाओगे तर्जुमा ये क्या कह रहा है। हम कहते हैं नहीं यार मैं मुसलमान तो हूँ, लेकिन मुझे अरबी नहीं पढ़नी आती। वो कहता है यार आप नमाज में भी अरबी है, आप सारे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, सूरतें पढ़ी जा रही हैं, आप बस एहतराम में। ये सही है कि दवाई लेके उसको जेब में डाल लें और कहें कि मैं ठीक हो जाऊँ। आप सब ने, माओ ने भी, बच्चों ने भी एक चीज़ याद रखनी है, कुरान समझे और अरबी बोले बगैर आप कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कुरान पे अमल नहीं करेंगे, जब तक कुरान सीखेंगे नहीं। जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे ज़रूर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे ज़रूर साइंस पढ़ाई जा रही है, लेकिन जब तक आप कुरान को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, अरबी बोलेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मेरे साथ वादा करते हैं सब बच्चे, अरबी बोलना पढ़ना, आपके पास टीचर्स आ रहे हैं इंशाल्लाह, यहाँ पे आपकी मैडम आपको बताएंगी, आपको अरबी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। और खालिद शेख साहब कुछ कहना चाहते हैं तो इसके बाद बाजी। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, in the name of Allah, the compassionate, merciful. माशाल्लाह बच्चों, really पहले good morning to everyone, and we are really proud माशाल्लाह आपके जो achieve कर रहे हैं और that Mrs. Amira and the whole team, the teachers and everybody, mashallah. Thank you so much, especially parents, mothers, mommy, and Jaimani, and we know they're busy, they're at work or whatever. But the only simple thing is we all know that yahan, mashallah, building future leaders, and that's what we are doing. We are building future leaders. जो हम जो भाई अभी कह रहे थे कि आप future leaders हैं जिसने पाकिस्तान को चलाना and all that. हमारा एक साइन है पीछे, we are future leaders. So बच्चे, I'm sure you all know कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ. We are future leaders. So I need you to say that. Repeat करें please. We are future leaders. We are future leaders. Loud or so loud. inshallah.
future leaders. Inshallah, keep up. Thank you. जी मैं मिसिज इमरान से कहूँगा, इमरान भाई मेरे बड़े से दोस्त हैं, भाभी जब भी बुलाई आप रही, मैं चाहूँगा ये खुद भी डिबेटर रही हैं, इनको कैसा लगा आप पहले कहें, फिर हम इनामात देते हैं इनको आगे चलो। Assalamualaikum and a very good morning to all the students. It's थोड़ा सा आगे। always wonderful to be part of Noor Foundation. बहुत अच्छा लगा and it's very nice to be back. I wish all the very best to all the students. They have performed so well, so brilliantly today, and they are the sparkling stars. Mashallah. And I can see them very bright in the sky, and that time is not far away when these students will be representing Punjab, inshallah. So now we'll proceed for the distribution, please. Thank you so much. Now we have position holders for English speech competition. For the third position, we have Bisma Abdul Sattar. थोड़ा आगे Please put your hands together for her. well done. For the second position, we have Ikra Javed. Well done. आप इधर आ जाओ। Congratulations, Ikra. यहाँ पे करियो, आगे थोड़ा और आगे, यहाँ अपनी अम्मी के सामने, यहाँ अगर आई हुई है, इधर आओ, इधर आओ। And last, for the first position, we have Anisa Abdul Hamid. इधर आओ, Very well done, Anisa. ऐसे रहो इधर, बस यहाँ पे, ये यहाँ पे, ऐसे सामने, ठीक है। Next. Now we have position holders for Urdu speech competition. For the third position, we have Iman Sardar. सामने देखो। खालिद भाई इधर आ। इधर देखें। वेल डन। थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आओ। अब इनको आगे आप इधर पीछे, वहाँ पे लाइन में हो। For the second position, we have Maryam Abdul Rahman. Please put your hands together for her. Her energy was seen visibly in this speech. Excellent. इधर आओ। Well done, माशाल्लाह, माशाल्लाह. Proud. And for the first position, I guess everyone knows it. Muhammad Hassan from grade 5B. Please put your hands together for him. Very well done, Muhammad Hassan. Great job. आगे देखो। Well done. आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आगे उधर उनके साथ ये तीनों इधर आगे, खालिद भी आगे। चल गिरना नहीं आपने। चले आप साथ करिए, इधर इधर ठीक है, आप दोनों हिंदी हमसे। एक Dave, well done. Thumbs up, everyone, thumbs up. Thumbs up, thumbs up. खालिद भाई, thumbs up, thumbs up. Good job. A good teacher is like the rising sun that comes to fill the empty and dark minds with the light of the education. Now I would like to call Smeed Ahmed from 6B on the stage. Please clap for him. Good morning, everyone. My respected teachers and dear students. My name is Sameer from class 6B. I am here in front of you to discuss on role of teacher in shaping futures. Teachers are gifts of gods who guide us and who guide us towards success. They are the great source of knowledge and enlightenment. They teach students about the importance of discipline and perseverance. They are the one who build a good nation
and make the world a better place. Teachers are like the friend that helps in students in believing in themselves and make the world a better place. Students should always respect their teachers and one who is students should always respect their teachers. There is way that one who guides students into the right path. There is a saying, if you can read this and anything, thank our teacher. Thank you. Thank you, Subhan, for sharing your ideas. Sameer. Teachers are those who help find strength, wipe away tears, overpower demons, and conquer fears. Now I would like to call Umme Habiba from grade 8B to share his precious words. Assalamu alaikum and good morning. Respected principal, worthy teachers and dear fellows. Today I have got a golden opportunity to share with you my views on the topic of the role of teacher in society. ज़िंदगी के सफ़र में कांटे होते हैं, ज़िंदगी के सफ़र में जो कांटे होते हैं, राह में फूल उस्ताद बिछाते हैं. Teachers are like candles which melt themselves to bright our futures. Behind the success of every doctor, scientist, artist, singer, professional is a teacher. Besides our parents, the person who motivate us, guide us, teach us are none other than our teachers. सुनी रोदात जब किसी की कामयाबी की हर रोदात में ये मरकज़े किरदार होते हैं. बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी ज़मीनों पर इन्हीं के फैज़ से उजड़े चमन आबाद होते हैं. They have a major contribution to society development and upliftment. They teach us the right values of life and the difference between right and wrong. If there were no teacher, then who would teach us, make us eligible to walk on the right path? सबको तहज़ीब-ओ इख़लाक़ सिखाते हैं, हमको इंसान उस्ताद बनाते हैं. They have a different outlook compared to other persons. They have the ability to make others realize the pros and cons of anything. Dear students, we show our respect to our teachers. We are just soil and they convert us into beautiful poets. Thus, teachers make us realize the best of our abilities. Obviously, when we are guided and taught by good teachers, we become good human beings and contribute to society. This ultimately leads to the development and growth of society. हमारी दरसगाहों में जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में वही कौम की बुनियाद होते हैं. Thank you. Teacher who loves teaching, teach children to love learning. Now I would like to call Subhan Faiz from 7B to share his views. Please clap for him. It's in the hand of the teacher. We are not only learning academic lessons from teacher, rather we are learning a lot of new things. They play a major role in molding our character. They always encourage to follow good habits. उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, मगर तलबा को बादशाह ज़रूर बना देता है. Dear students, whenever we say we are highly educated, it includes our behavior, our confidence, and our respect to others. We need teacher in every stage of life can seek suggestion from a teacher. Being a new teacher, like flying an aeroplane with building it. जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, उस्ताद वो चिराग है जो दूसरा को रोशन करने के लिए खुद को जला लेता है. थैंक यू ऑल टीचर्स.
Thank you, Subhan, for sharing your ideas. Now, I would like to call Rizwan Ahmed from 8B to share his precious words. Please clap for him. A very good morning and Assalamu alaikum to one and all present here. I am Rizwan Ahmed from 8B. Today I stand before you to speak on the topic importance of teacher in our life. जितनी भी ज़माने से मुझे दाद मिली है, जितनी भी ज़माने से मुझे दाद मिली है, मेरा ईमान है कि सब बाइसे उस्ताद मिली है. A teacher is not only a person who imparts knowledge, but also the one who inspires us, guides us, and shapes our life. From that moment we step into a school, it is the teacher who helps us grow both academically and as a person. They are the ones who introduce us the world of knowledge and set the foundation for our learning. In our formative years, teachers play a crucial role in molding our thoughts, shaping our views, and nurturing our ideas. As we progress through school, we come across various teachers who specialize in different subjects. Each one of them contributes in their unique way towards our all-round development. Teachers ignite the spark of curiosity in us, encourage our creativity, and fuel our imagination. They introduce us to the joy of learning, the excitement of discovering new things, and the satisfaction of achieving our goals. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Apart from the academic learning, teachers also impart essential life skills such as teamwork, discipline, problem solving, and time management. They instill values like honesty, respect, and empathy in us, which help us navigate through the complexities of life. Through their warmth, understanding, and passions, they create a safe and nurturing environment where we can learn, grow, and thrive. In our journey of life, we come across various mentors and guides, but the influence of a teacher remains unparalleled. They are the unsung heroes who work tirelessly to make a difference in our lives, and their hard work and dedication deserve our heartfelt gratitude. वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की. In the end, teachers play an invaluable role in our lives. They are the architect of our future, and their teaching remains engraved in our hearts forever. Let us take a moment to thank every teacher who has been a part of our journey and appreciate their selfless contributions. आखिर में मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल सुनाना चाहता हूँ. जैसा कि उन्होंने फरमाया, अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ. जज़ाकल्लाह. Today, I would like to talk about a unique topic that exists in our society, the bond between teachers and students. This bond, I believe, surpasses every other bond we form throughout our lives. अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है. अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है. उस्ताद वो समंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है. Teacher-student bond surpasses every other bond because teachers make our future. They tell us the way to live. But what makes this bond extraordinary is respect, trust, and guidance. Teachers work hard on students from the first day to the last day of school. They not only teach subjects but also life lessons. A teacher becomes not just an educator but also a dear friend. उस्तादों की अज़मत को कैसे बयां करें हम, उस्तादों की अज़मत को कैसे बयां करें हम, वो है जो हमें रोशनी की तरफ ले जाते हैं.
Building trust is essential in any relationship. When a student trusts their teacher, it creates a positive and open learning environment where students are more likely to seek help and guidance. Teacher-student friendship should be built on a foundation of trust and respect. It is not the same a friendship between peers, but rather a unique bond that is nurtured by mutual admiration and a shared commitment to learning. When a teacher is approachable, empathetic, and cares for the well-being of their students, a sense of friendship should naturally emerge. In closing, I want to express my deepest gratitude to all the teachers who have touched our lives and continue to shaping the world. Your dedication and effortless source are the driving force behind progress. And for that, we thank you. Teachers, you deserve utmost respect and appreciation. A teacher is not a king, but he makes a king. Thank you. के गोहरे नयाब उस्ताजा, कौम के मोहसिन इनके ममार उस्ताजा, क्या मैं ख़राजे तहसीन पेश कर सकूँगी? क्या मैं ख़राजे तहसीन पेश कर सकूँगी? मेरे सारे लफ्ज़ों की वजह मेरे उस्ताजा। सदर वक़ार, मेरी आज की तकरीर का अनवान अज़मत उस्ताजा। उस्ताद का ये लफ्ज़ ऐसा गुलदस्ता है जिससे सारा चमन मोतर हुआ, ऐसा सितारा है जिससे सारा आसमान रोशन हुआ। ये उस्ताद हमें जहालत की तारीक़ों से निकाल कर इल्म की नूरानी दुनिया में ले जाते हैं, हमें अच्छे बुरे का फ़र्क बताते हैं, अक्ल हुनर और शार को निखारते हैं और हमें ज़िंदगी के हर मराहिल को आसानी से पार करने की ताकत देते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में जितने भी कांटे होते हैं, ज़िंदगी के सफ़र में जितने भी कांटे होते हैं, राह में फूल उस्ताद बिछाते हैं। सदर वक़ार, मौलिम वो लफ्ज़ है जिसके दामन में अनगिनत चिराग रोशन है, जिसका आंचल मुस्तक़बिल के जुगनुआ से भरा हुआ है। अगर हम इस लफ्ज़ के प्रेत खोलें तो शायद ये पता करने में सारी उम्र बीत जाए। मौलिम का लफ्ज़ 4 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। मीम से मिराजुल अंबिया का तर्जुमान, ऐन से अक़ीदा तख़लीक़ुल इंसान, लाम से लगनो हो रे फरिश्तगान, मीम से मिराजुल अंबिया का तर्जुमान। जनाब सदर, उस्ताद की मिसाल ऐसी सीढ़ी की मांद है जो खुद तो अपनी जगह पर रहती है लेकिन दूसरों को बुलंद से बुलंद मुकाम अता करती है। किसी ने क्या खूब कहा है, दुस्ते मामू को वो लोहो कलम देता है, नौनिहालों को वो कंदीले हरम देता है, बांटता फिरता है वो रोशनी इस तरह, बांटता फिरता है वो रोशनी इस तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। सदर वक़ार, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को अपना नाइब मुकर्रर किया, फिर इस नाइब को मौलिम के अहदे पर फाइज किया। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे मोहतरम और मुक़द्दस पेशा उस्ताद का रखा, किसने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलिम बना कर भेजा। सदर वक़ार, इल्म किसी किस्म का भी हो, इल्म किसी किस्म का भी हो, वो मौलिम की मरहून मन्नत होता है। उस्ताद की अज़मत को तरानों में ना तोलो, उस्ताद की अज़मत को तरानों में ना तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। जनाब सदर, जिस तरह अमल के बगैर इल्म, रोशनी के बगैर सितारे, खुशबू के बगैर फूल और सूरज के बगैर सुबह बेमानी है, इसी तरह रहनुमा या मौलिम के बगैर इंसान बेनामो निशान होता है। उस्ताद, तेरी अज़मत को सलाम, तू ना होता तो ये दुनिया थी बेनाम। सिखाया शहनशाह को रमूज़े शहनशाही, सिखाया शहनशाह को रमूज़े शहनशाही, बख्शा रहनुमाओं को सलारों को अंदाज़ा कलाम। ऐ उस्ताद, तेरी अज़मत को सलाम। शुक्रिया। आपकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहती हूँ फीज़ा को कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन ये बैठ के क्या आसमान देखता है। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम।
मेरी आज की तकरीर का इन्वान है तालीम की अहमियत। जनाब अली वक़ार, पहली वही आती है इकरा पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है हमें ज़िंदगी का पहला सबक मिला, पढ़ यानी कि इल्म हासिल कर। जनाब सदर, तालीम का मतलब है जानना, मालूम करना या किसी बात का इदराक होना, क्योंकि तालीम ही की बदौलत इंसान तरक्की की राह पर गामजन होता है। इनके समंदर में डुबकियां लगाकर सितारों का खोज लगाता है, ज़मीन के सीने से मादनियात तलाश करता है और पानी की गहराइयों से सीधे जोहरात तक रिसाई हासिल करता है। पानी और सूरज की शान से तवानाई के हसूल तक सब तालीम ही की मरहून मन्नत है। जनाब अली, क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। इल्म एक रोशनी है, जो शख्स इल्म हासिल करता है इसकी ज़िंदगी चिराग की मानिद होती है। दुनिया का माल दूसरों तक तकसीम करने से कम होता है, लेकिन इल्म वो दौलत है जो दूसरों में तकसीम करने से कम नहीं बल्कि इसमें और इजाफा होता है। बेशक इल्म एक लाजवाल दौलत है। जनाबे वाला, तालीम का हसूल न सिर्फ कामयाबी का दामन है बल्कि किसी भी इंसान की शख्सियत को पुरएतमाद बनाने और दिखाने में भी अहमियत का हासिल है। शायर मशरिक ने क्या खूब कहा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ वो सजदा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। शुक्रिया। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका अनवान है मुल्क की तरक्की में उस्ताज़ा का किरदार। इस दुनिया में कुदरत ने माँ और बाप को एक अजीम नेमत के तौर पर पैदा किया है। अगर माँ की ममता और बाप की शफकत न होती तो कोई बच्चा सन बलोग और सन शऊर को बाहुस्नी ख्वाबें ना पहुँच सकती। दुनिया के हर बच्चे पर वालिदैन का एहसान है कि वो कमाल मोहब्बत के साथ अपने बच्चे को परवान चढ़ाते हैं, लेकिन दुनिया में एक और शख्सियत भी है जिसका एहसान माँ बाप से भी बढ़कर है, और वो हस्ती अजीम उस्ताद है। माँ बाप हमारे जिस्म की परवरिश करते हैं जबकि हमारे रूह की परवरिश हमारे उस्ताद करते हैं, हमें इल्म दानिश अता करते हैं, अच्छे बुरे में तमीज़ करने की सलाहियतें बख्शते हैं। हज़रत बावकार हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा उम्मी और अभी अल्फ़ल अल्फ़ल इशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, यानी मैं तो एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह ताला ने भी जहाँ मोमिनों को मुखातिब करते हुए एहसान जताया है कि मैंने एक रसूल भेजा है, वहाँ आपकी यह सिफ़त है भी बयान की गई है कि वो तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। मेरे दोस्तों, सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इरशाद फरमाते हैं, जब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते थे तो हम आपके सामने इस तरह खामोश बैठे थे जैसे हमारे सरों पर परिंदे, गोया इनकी बात को इंतहाई गौर से सुनते। तो इनके इरशादात गौर से सुने, इन्हें समझने की कोशिश करें और याद करने का आज़म लेकर छुट्टी होने पर रुखसत हों। उस्ताद साहिबान का एहतराम करें और दिल से इज्जत करें, इनका हुक्म माने। सदर अली वक़ार, जो शख्स तालीम से महरूम है इससे तालीम की कदर पूछो। सारा दिन गर्मी और सर्दी में मेहनत और मजदूरी करता है, न गुफ्तगू का सलीका है न ओढ़ने का, न आदाब माशरत जानता है और न हुस्न माशरत। यह सब नेमतें उस्ताद ही के सदक़े मिलती है। अपने मुक़द्दस पेशे के एतबार से भी उस्ताद एक अजीम हस्ती है। मेरे दिल की धड़कनें अक़ीदत और एहतराम से हज़रत उस्ताज़ा को सलाम पेश करती हैं। है मेरे सदर और अरबाब ज़िशान, फ़ारसी का मक़ौला है, हर के खिदमत कर्द और मखदूम शद, यानी जो खिदमत करता है उसी की खिदमत की जाती है। कौम चाहती और मुस्तकबिल के रोशन सितारे अपनी चमक और दमक में मज़ीद रहनाइयाँ देखना चाहते हैं तो इसी का सिर्फ एक रास्ता है कि इनकी अक्ल होश देने वालों की इज़्ज़त और तकरीम का सेहरा सजा लें। सदर अली वक़ार, कल तुलू होने वाला सूरज अगर उस्ताद की तकरीम करने वालों से इजाज़त लेकर तुलू ना हो तो फिर कहना। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, जितनी भी ज़माने से मुझे दाद मिली है, जितनी भी ज़माने से मुझे दाद मिली है, मेरा ईमान है कि बाद से उस्ताद मिली है। थैंक यू।
हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो। अब मैं दावत देना चाहूँगा 6A की महविश फरीद को कि वो अपनी राय का इजहार करें। आप सबकी भरपूर तालियों में। मेरे माज़र उस्ताज़ा कराम और हम अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम महविश है और मैं शीशम ए की तलबा हूँ। मैं अपनी इस तकरीर का आगाज़ इस शेर से करूँगी। बड़ी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, बड़ी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ ना जानती थी, सब कुछ उन्होंने सिखाया। पहुँचा दिया फलक तक मेरे उस्ताज़ा ने मुझे यहाँ से, पहुँचा दिया फलक तक मेरे उस्ताज़ा ने मुझे यहाँ से। वाकिफ़ ना थी मैं इतने बड़े जहाँ से। सदर वक़ार, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है अज़मत-ए उस्ताज़ा। ये गम खाता जाता है मुझको, ये गम खाता जाता है मुझको। मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं, कहीं बरकत ना उठ जाए वहाँ से, कहीं बरकत ना उठ जाए वहाँ से जहाँ उस्ताद की इज्जत नहीं। सदर अली वक़ार, उस्ताद का ये लफ्ज़ ऐसा गुल रास्ता है जिससे पूरा चमन मातूर है, ऐसा सितारा है जिससे पूरा आसमां रोशन है, समुंदरों की मौजों का सिलसिला है। मौलम वो ऐसा लफ्ज़ है जिसके दामन में इनके गज़ते मशाले रोशन है, जिसके आंचल मुस्तकबिल के जुगनू के मानंद है, जो खुद तो उसी जगह पर रहता है मगर दूसरों को बुलंद से बुलंद मुकाम अता करती है। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीसों पे पत्थर भी पिघल जाते हैं। सदर अली वक़ार, जिस तरह इल्म अमल के बगैर इल्म, रोशनी के बगैर सितारा, खुशबू के बगैर फूल, सूरज के बगैर सुबह बेमायनी होते हैं, इसी तरह उस्ताद को कौमों का मुआर कहा गया है। कौमों को बनाने, सजाने और तरक्की की राहों में अरूज तक पहुंचाने में उस्ताद का ही बुनियादी किरदार है। जैसे एक कारीगर पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है, जैसे एक मुआर पत्थर, ईंट और सीमेंट से एक खुशनुमा महल तामीर करता है, जैसे एक कुम्हार मिट्टी से खूबसूरत बर्तन तैयार करता है। यौम आज़ादी उस्ताद के मौके पर दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ। मैं इस तकरीर के आखिर में ये शेर पढ़ूँगी। हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, असल में यही कौम की बुनियाद होते हैं। शुक्रिया। अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। उस्ताद वो समुंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है। जनाब सदर, उस्ताद कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस मौजू पर मुझे लब कुशाई करने का मौका दिया गया है, वो है उस्ताद का मुकाम व एहतराम। जनाब सदर, ये उस्ताद क्या है? उस्ताद कहते किसको हैं? उस्ताद वो मुबारक हस्ती है जो गुमान को यकीन में बदलता है, जो पत्थर से हीरे तराशता है, जो पत्थर से हीरे तराशता है। ये वो हस्ती है जिसकी निगाहों में शफकत, लहजे में मिठास और रवैये में नरमी शाइस्तगी होती है। वो उस्ताद कहलाता है। उस्ताद वो हस्ती है जो हाथों में जुगनू लिए शम्सो कमर की आंखों में आंखें डाल कर कहता है, ये मेरे काबा से जाकर कह दो अपनी किरणों को गिन कर रख ले। ये मेरे काबा से जाकर कह दो अपनी किरणों को गिन कर रख ले। मैं अपने सहरा के ज़रे ज़रे को खुद चमकाना सिखा रहा हूँ। जनाब सदर, रिश्तों में सबसे मुकद्दर रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का है, मगर अफसोस तालबा का हाल ऐसा हो गया है कि वो अपने उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करते। इसका नतीजा ये निकलता है कि कामयाबी इनका मुकद्दर नहीं बनती। वालिदैन सिर्फ बच्चों को अर्श से फर्श पर लाते हैं और उस्ताद बच्चों को फर्श से अर्श पर लेकर जाते हैं। कुछ वक्त तो होता है दिमागों में, दिलों में, कुछ वक्त तो होता है दिमागों में, दिलों में, यूं ही कोई सकरातो सिकंदर नहीं होता। जनाब सदर, फिर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कितनी मोहब्बत से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बत से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ ना जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ़ ना था ज़रा भी इतने बड़े जहाँ से। मैं मैम के लिए कुछ कहना चाहूँगी। हूरें भी जलती हैं क्या, इतनी खूबसूरत हैं आप। हूरें भी जलती हैं क्या, इतनी खूबसूरत हैं आप। आपके लहजे में इतनी मिठास लगती है, स्कूल की मैडम है क्या आप?
class 6, 7 and 8. I'm really proud of you. Clap for yourself and your fellows who arranged this whole event. So to my respectable guests, I really want to tell you what is the role of teachers. You might have seen in the two lots. The first one was prepared by the teachers, and the second one, I'm proud of my leaders. This whole show, the second part, was totally prepared by the students themselves. So I'm happy because they were the selection committee, they were the one who were writing scripts for them, they were the one who were writing speeches for them. So might be the energy was not there, and that energy is always provided by whom? By the teachers. So, to the senior students, I don't want to discourage you because it was a very great show. The teachers were not helping you, but you have done a great job. Again, clap for these students. But I really want to, as you all have told us, the importance of teachers. But I really want to show you the importance of teachers also. Because the students who were prepared by the teachers, they had a lot of energy. So no matter at what age you are, wherever you are, the teacher's role is very important, right? So I would like to call, first of all, Amisa from 4A to show you also her little talent. She got first prize in 345. She's going to tell her speech again, so that you should get the idea how did she also perform, right? Do you remember that? And they were all paperless. Clap for them. No, it's not just that they give us our legitimate excuse to wear cute glasses, but it also gives a chance to imagine when you open a book, you're like a director casting characters in your mental production. You can imagine dragons with mustache and no one tell you it's wrong. On TV, you're stuck with what they show you, even if the detective mustache isn't nearly as impressive. And let's not forget those wonderful commercial breaks. Books don't interrupt your thrilling adventure with ads for cleaning products or insurance you never knew you needed. You won't find the latest vacuum cleaner manual listed as a bestseller, but you will find it on TV. In conclusion, books let your imagination run wild. Don't tolerate multitasking, keep you engaged without commercial breaks. Books don't commercial breaks and also make you a star of intellectual conversation. So my friend, let's celebrate books and leave television to lifeless and unimaginative people. Thank you. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ ना जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। मैं कुछ ना जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। पहुंचा दिया है फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया है फलक तक उस्ताद ने यहाँ से। वाकिफ न था ज़रा भी इतने बड़े जहाँ से, वाकिफ न था ज़रा भी इतने बड़े जहाँ से। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है, इसका उन्वान है उस्ताद की अज़मत। उस्ताद ये लफ्ज़ ऐसा गुलदस्ता है जिससे पूरा चमन मुअत्तर हो, ऐसा सितारा है जिससे पूरा आसमान मुनव्वर हो, और एक ऐसी सबा है जिसकी ठंडक दिल में उतर जाए। मेरे अजीज़ साथियों, ये उस्ताद है क्या? उस्ताद कहते किसको हैं? उस्ताद तो वो हस्ती है जो गुमा को यकीन में डालता है, जो पत्थरों से हीरे तराशता है, जो चश्मा बिसारत को निगाह बसीरत अदा करता है। वो हस्ती जिसके लहजे में मिठास, निगाहों में शफ़क़त और रवैये में प्यार होता है, वो उस्ताद कहलाता है। हमारे कदम
शुक्रिया। मेरे जी साथियों, ये भी एक हकीकत है कि उस्ताद ही है जिससे अपने शागिर्दों की अरूज की फ़िक्र होती है, वरना आजकल के दौर में कौन किसी की फ़िक्र करता है। तुमसे मिल्लत व अक़वाम की खुशहाली है, तुमसे मिल्लत व अक़वाम की खुशहाली है। तुमने कश्ती मेरी तूफ़ान से निकाली है, तुमने कश्ती मेरी तूफ़ान से निकाली है। फ़र्श की खाक को परवाज़ सिखाई तुमने, फ़र्श की खाक को परवाज़ सिखाई तुमने। तुमने तकदीर हज़ारों की बदल डाली है, तुमने तकदीर हज़ारों की बदल डाली है। आयाम शिकस्ता को तो गुजर जाएंगे लेकिन, आयाम शिकस्ता तो गुजर जाएंगे लेकिन, उस्ताद के होठों की हंसी याद रहेगी, उस्ताद के होठों की हंसी याद रहेगी। आखिर में इस शेर के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। तुम्हारी बातों की भीनी खुशबू हमारी सोचों में बस गई है, तुम्हारी बातों की भीनी खुशबू हमारी सोचों में बस गई है। तुम्हारे नक्शे कदम से हमने हज़ारों चले ख्याल पाए, तुम्हारे नक्शे कदम से हमने हज़ारों चले ख्याल पाए। तुम्हारे रस्ते शफीक थामा, तुम्हारी उंगली पकड़ के खुद को संभाल पाए। तुम्हारी आंखों की रोशनी से हमारे दिल भी हुए मुनव्वर, तुम्हारी आंखों की रोशनी से हमारे दिल भी हुए मुनव्वर। तुम्हारे लफ्ज़ों के सच्चे मोती हमारे दामन में भर गए हैं, तुम्हारे लफ्ज़ों के सच्चे मोती हमारे दामन में भर गए हैं। तुम्हारे दम से ये खोटे सिक्के चमक गए हैं, दमक गए हैं। तुम्हारे दम से ये बिगड़े नक्शे संवर गए हैं, तुम्हारे दम से हमारी राह का है नूर अब तक, तुम्हें खुदा ने कमाल बख्शा। हमारी राह का है नूर अब तक, तुम्हें खुदा ने कमाल बख्शा। तुम्हारी नेकी अजीम तर है, तुम्हारा रुतबा खुदा ही जाने। तुम्हें से सीखा सवाल करना, तुम्हारे बच्चे ये पूछते हैं कहाँ से लाए हमें बताओ वो फूल लम्हे गुलाब यादें, कहाँ से लाए हमें बताओ वो फूल लम्हे गुलाब यादें, कहाँ से लाए हमें बताओ वो फूल लम्हे गुलाब यादें। शुक्रिया। Class 3B. Respected teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Ikra and I am from grade 3B. Today, the topic of my speech is books are better than television. I want to share with you why I believe that books are better than television. Firstly, books let our imagination run wild. When we read, we get to create our own pictures and scenes in our mind. On the other hand, TV limits our imagination and shows us everything in visuals. We can lose ourselves in the story and get away from the noise of the world. In conclusion, while television certainly has its merits and provides entertainment, but books offer the magic of books and allow them to enrich our lives. Thank you. Of second round, class 6, 7 and 8. And next time, students, I really want to see different faces on the stage. This time also we tried to pick up the students who did not perform last time, but they were new faces. Thank you, Madhya, for coming here, for joining us. You all know Miss Madhya. Give her a big clap. And tell her that we are really missing her. Isn't it? Yes, Miss Madhya, we are really missing you. Please join us back as early as possible. And after this prize distribution, Ms. Madhya is going to give you a few suggestions regarding such a nice audience. Third prize goes to Iza Abid. Second prize goes to Ume Habiba. Well done, Iza. And the first prize goes to one and only Rizwan Ahmed. उर्दू डिबेट कंपटीशन में थर्ड प्राइज गोज टू अफशा इफ्तिखार. Second prize goes to Hina Altaf.
And the first prize goes to Rimsha Asif. मैं इस तरफ आ जाता हूँ बेटा, आगे आओ अभी आओ खालिद बेटे, आप बेटे आगे हैं। उनकी मौजूदगी में मैं मिसिज इमरान को आपको स्पेशल सामने कहूँगा कि आपके आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगा इनको कि माशाल्लाह माशाल्लाह इनके हस्बैंड जो है ABL जो बैंक पाकिस्तान का सबसे बेहतर बैंक है उसके टॉप नोच ऑफिसर्स में से हैं, और हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है, मैं सिफारिश करने लगा आप सबके सामने, तो मैं उनके सिफारिश करने लगा हूँ कि भाभी प्लीज़ इमरान भाई को यहाँ लेके आएँ और हमें बड़ी ज़रूरत है CSR की उनकी तरफ से, तो प्लीज़ ज़रूर कोशिश करें। अब आज हमारी एम्बेसडर मिसिज इमरान है और मैं नहीं कहूँ कि ये हमारी एम्बेसडर बन के उनके पास जाएंगी, उनकी मिसिज बन के नहीं, और उनकी रिक्वेस्ट करेंगी कि हमें हॉस्पिटल के लिए आप बच्चों के लिए आके पहुँचाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, तो किसी भी हवाले से वो यहाँ पे आएँ और हमें वो ज़रूर मदद करें। थैंक यू वेरी मच। और इन बच्चों का आप पेरेंट्स का यहाँ पे भी जो फर्स्ट है आपका सॉरी नाम है बेटा मोहम्मद हसन, हाँ आपके पापा आ गए हैं, और इधर आए ना, इधर आपके पापा भी इधर आए इनके, आप भी आए, आपको तस्वीरें देंगे, आपको वीडियो भी देंगे, आप इसे भी बनाएं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्राउड मोमेंट है, मैं कितना खुश हूँ, ये नहीं कि सिर्फ इसने मेरे हाथ चूमे हैं, वो तो इसने इतनी मोहब्बत है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वालिद साहब कुछ कहें इनके लिए, इतना होनहार बच्चा। बस सर मेरी कोशिश ये होती है कि इनको हलाल की रोज़ी खिलाई जाए, बस ये है कि आप अपने बच्चों के लिए जो भी ड्यूटी करते हैं, जहाँ भी ड्यूटी करते हैं